Rahim, and welcome to all of you. First and foremost, बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपका for inviting me for this session. Rabia, thank you so very much for introducing me to the our audience. I hope everyone is doing well. आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और सब खैर आफियत से होंगे. So, just to keep the things on a very lighter note, the first thing first, we are going to have this particular session, which is based on the power of communication in a two-way thing. Whatever I'm gonna ask, I'm gonna share. I really want everyone to have a participation because they came. If we're gonna simply going for a one-way communication, if I'll be saying something alone and you guys just simply going to listen to me, it's going to be so boring thing. क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो कंटिन्यूसली 15 से 25 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं सुन सकता. ये हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है हमारे ब्रेन का, जिसमें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो साइंटिफिकली रिकॉर्ड है वो 15 से 25 मिनट्स है. चूंकि आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया का दौर है, वी डू अ लॉट ऑफ स्क्रॉलिंग्स और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई है एज कम्पेयर टू द सोशल लाइफ. तो हमारा ये अटेंशन स्पैम, लिसनिंग स्पैम मज़ीद कम हो गया हुआ है. इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि व्हेन वी डू स्क्रॉलिंग, राइट, it's so hard for us to listen to a video who is more than 1 minute. Correct me if I'm wrong. हम आदी हो चुके हैं इस चीज़ के, हमारा अटेंशन स्पैम इतना डिस्टर्ब हो गया हुआ है इस सोशल कम्युनिटी की वजह से कि हम कंटिन्यूसली एवरेजली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च एक आम बंदा या कोई बच्चा, एडल्ट, वट एवर वी टेक, हु डू स्क्रॉलिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एनी ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म, 1 मिनट के अंदर दे वुड लव टू सी मोर देन 10 to 15 वीडियोज़. वालेकुम अस्सलाम तैयबा. सो वाई, अब एक एवरेज वीडियो जो हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलती है, दैट लीव्स द एवरेज ऑफ 25 to 30 सेकेंड्स. तो हमारा अटेंशन स्पैम अगर हम जेनेरिकली देखें तो इट्स सपोज टू हैव 2 और मैक्सिमम 3 वीडियोस इन अ मिनट, राइट. बट रिसर्च हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिसर्च हमें बताती है कि एवरेजली every individual would love to see more than 10 to 15 videos in a minute. और हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं. We can't deny this thing. So इसीलिए we're gonna divide the entire session in chunks, right? During the session, if any question came into your mind without hesitation, do not hesitate. You can ask. You can ask the question. Either we are going to have a session at the end of the, or either we can have there and then QA session as well. Okay. So let me ask a very first question. Any 3 individuals out of you can participate in this thing. What is communication? Is there anyone who can describe this thing? Just raise your hand. So I would love to know, okay, what are your remarks about communication? So I have the very first candidate, Almaida, right? Almaida Nadeem. Yes. About talk to each other, know to each other, networking. Something I think this is the best way to know about others, people, what they think, and what they are feeling. That's all. All right. So Muqaddas, could you just elaborate it in a single words? कि according to Muqaddas हमें पता चले कि communication क्या? Just in a single word. मेरे हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो है, इसका मतलब ये है कि हम दूसरे लोगों से बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं और वो आगे क्या करेंगे. All right. यानी So हमें अगर कम्युनिकेशन का सॉरी Go ahead. Go ahead. यानी हमें कम्युनिकेशन करके ये पता चलेगा कि अगला बंदा क्या सोच रहा है और हम में कॉन्फिडेंस आएगा. All right. So based on the entire thing that you have mentioned, so I think we can say
knowing each other. According to Muqaddas, the communication is the pathway to knowing to each other, right? So yes, Zainab. Yes, yes. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Uh, assalam. communication is exchanging ideas और communicating each other, अपने ideas दूसरों के साथ share करना, उनकी राय लेना उनके ऊपर, उनसे advice लेना. तो I think communication is this. All right. अच्छा, I have a very interesting thing to share with you. अभी जो भी pointers हम आपस में discuss कर रहे हैं, Sir Aves, it's an own sport leverage from our side, from our company. Whoever is going to tell us the minutes of our meeting, minutes of our session, are going to have an official appreciation letter from our company. So just take it as an opportunity. You guys got a chance to have an official acknowledgement and the appreciation letter from an international organization that will help you to enhance and to further grow in your career. So make sure जो भी अभी बातें हो रही हैं, जो मेजर की पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन करें. जैसे अभी मुकद्दस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कम्युनिकेशन इज जस्ट नोइंग ईच अदर. Zainab, just elaborate the way of your communication in single words. So we should note it down. I think sharing ideas so we Okay, can get knowledge. sharing ideas. All right. Yes, Maham. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. सर कम्युनिकेशन इज बेसिकली मतलब ग्रुप टॉक भी हो सकते हैं, टू पर्सन टॉक भी हो सकते हैं. हम एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करते हैं. लाइक एक कम्युनिकेशन होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जिससे हमें ना अपने एक ब्रॉड जो व्यू मिलता है. लाइक हमने अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी पता है, आई थिंक सो एआई ले लें फॉर एग्जांपल ना, एआई के बारे में थोड़ा पता है तो हम उसमें कम्युनिकेट करेंगे ग्रुप में, या अगर टू पर्सन भी कम्युनिकेट करें तो वो एक आइडिया शेयर होते हैं, एक दूसरे के व्यूज़ का पता चलता है. तो वो हमें जो होते हैं ना हमारे प्रोज एंड कॉन्स, हमें उससे बेटर पता चलता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट, हम उसको किस वे में के जा सकते हैं, हमारे करियर के लिए क्या बेस्ट है, हमने क्या करना है एज ए बिजनेस, हमने किस वे की तरफ जाना है. तो आई थिंक कम्युनिकेशन लाइक दिस. All right. Much appreciated. Yes, Mehak. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. बेसिकली कम्युनिकेशन ये होती है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने इमोशंस, हम अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करें. और अगर हम कम्युनिकेशन के लिए एक वर्ड यूज करें तो आई कैन से ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. Let's have a real time example right now. So what we are doing right now, we are communicating with each other, right? So don't take it wrong or anything personal to yourself, because हम सब यहाँ पे सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं. Because जिंदगी में आप एक चीज को अपने साथ हमेशा जोड़े रखिएगा कि आप जिंदगी में कभी हारते नहीं हैं. हदीस शरीफ भी है कि इंसान पैदा होने से लेकर कब्र तक सीखता ही रहता है. उसके इल्म में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसके इल्म में कोई न्यू नॉलेज ऐड ऑन होती रहती है. सो इसको बहुत जगह अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि बाज़ औक़ात आप कुछ लोगों के पास बैठते हैं तो यू फील वेरी वेरी सेफ, काम एंड रिलैक्स्ड, कि आपको उनके पास बैठना अच्छा लगता है. ऑन दी अदर हैंड बाज़ जगहें और बाज़ लोग, कम्युनिटीज, सर्कल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको बैठ के उकताहट महसूस होती है. सो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी फील दैट काइंड ऑफ थिंग्स? It all depends of the matching of your frequency. If you are a positive person, you cannot stand in a negative frequency community. It's a nature's law. जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स ने डिफाइन की हुई है, जो आप अपनी फ्रीक्वेंसी खुद बनाते हैं. आप अपनी फ्रीक्वेंसी खुद कैसे बनाते हैं? बेस्ड ऑन योर डेली रूटीन, बेस्ड ऑन योर थॉट्स, बेस्ड ऑन योर माइंडसेट, द वे यू स्पेंड योर लाइफ. इट ऑल मेड्स योर फ्रीक्वेंसी. अगर आपके जहन में पॉजिटिविटी, अगर हम इसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में भी देखें, अगर आपके जहन में खौफ इलाही बैठा हुआ है ना, तो while taking every single step आप सोचेंगे कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो कहीं इसका इम्पैक्ट बुरा तो नहीं होगा दूसरों पे.
ऑन द अदर हैंड हमारे सराउंडिंग में ही हमने देखा है, अब वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ द वार गोइंग ऑन, द मेजर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इजराइल, they are not giving literally even a single thought of destroying the other countries. Why? Because they are indulged in the depth of negative frequency. और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? Because they are on the same frequency. जो उन फलस्तीन के लिए स्टैंड ले रहे हैं, they are on the same frequency of फलस्तीन. आपको किसी के दुख दे के एहसास होता है, इट मीन्स यू आर मैचिंग दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर पर्सन. आप किसी हालात को देख के इग्नोर कर देते हैं, इट मीन्स योर एंड द अदर पर्सन फ्रीक्वेंसी आर नॉट गेटिंग मैच. सो दिस type of communication is called the non-verbal communication. Your frequency also a part of communication. आपको किसी से अपनायत होती है, it is a part of communication. Your frequencies are communicating with each other. आपकी frequency match हो गई, your communication match. Once your communication match, you start feeling calm, you start feeling relaxed and comfortable with that particular person, with that particular thing. सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी जॉब होल्डर है, अगर वो किसी कंपनी में सेटिस्फाई है एंड वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मींस उस पर्सन की और उस ऑर्गेनाइजेशन की फ्रीक्वेंसी सेम है. ही इज फीलिंग कंफर्ट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां पे आपको काम बज़ाहिर तो बहुत अच्छी नजर आ रही होती है, बट यू वॉन्ट feel comfortable in that organization because of the negativity, because of the leg pulling and all these kind of things. And now let's talk about the sales perspective. तय्यबा, especially for you, कि sales में अगर आप customer की frequency को match नहीं करे, you won't be able to close that sale. Selling something is a process. आपकी communication depend करती है कि are you able to close that deal or not. So communication is transfer of your thoughts, words, feelings, or anything that you can assess in front of anyone. So अब अगर हम communication की बात करें, आप अपनी जिंदगी में communication के बगैर survive कर ही नहीं सकते. How? आप अपने surrounding में हैं, either you're talking to someone or you're not talking to someone. Communication is taking part of its own. हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दो ऐसी मेजर कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं जो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हम उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं. अब इसके अगर हम अपने लिविंग लाइफ में एग्जांपल लें, इन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वी ऑलवेज असेस. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हाउ दे विल बी एबल टू असेस यू ऑन अ वेरी फर्स्ट साइट? Because of your body language. So what body language shows? Body language shows you the non-verbal communication. Body language is actually doing a non-verbal communication to the other person, to the interviewer. कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक इंटरव्यूअर अगर कमरे में बैठा हुआ है, तो वो आपके knocking style से लेकर till you sit on the chair in front of him without saying a single word, he can assess, okay, are you confident enough? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, आप नर्वस हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं है, क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है, और यूर एक्सपर्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग, एनीथिंग. यू आर द वन हु रिप्रेजेंट योरसेल्फ थ्रू कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज आती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फर्स्ट, the other person is going to assess you through your non-verbal communication. Then the second part is for the verbal communication. A verbal communication में the way you greet, the way you talk, the way you listen. So ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं. I would love to add on one of my very dear friend who is in the meeting right now, कि who can clearly डिफाइन एस के अच्छा ये जो हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात की है, इसके अंदर जो तीन पॉइंटर्स मेंशन किए उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एज वेल. और लॉयर्स के लिए ये एक ऐसी चीज़ है, उन्होंने जब अदालत में जाना होता है, व्हेन दे हैव टू फेस द कोर्ट एंड द जज, देयर कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट.
So I would like to invite Mr. Zishan. Hand it over to you. Assalamu alaikum, everyone. I hope everyone is fine and good. Thank you so much, Mr. Naveed, for giving me this opportunity. Well, over here, I can tell you guys, he told you guys about non-verbal communication skills. So, actually, what is non-verbal communication skills? That is something like, someone is reading your body language, someone is reading your eye contact, facial expressions, posture, gestures, tone of voice, like how you are speaking, what's your body language, like are you feeling sad or are you feeling currently happy. So someone can judge you by your body language. This is called non-verbal communication skills. Whereas, moreover, when someone will be coming on you and he will be speaking with you, so next part, the verbal communication will start from there. In which what I can think, so communication is the superpower. It is the main power. If a person is having communication good communication skills, he can do anything. The most powerful people in the world, who are they are good communicators. If you will see big leaders like Nelson Mandela and others, who they were good speakers. They were having good communication skills. So if even you guys want to come in politics, you guys want to come in law, or even if you want to do anything in any part of the business, or in the world, the communication is the main key uh, for success, which I think so. If you guys will ask about me, my point regarding communication skills, so I was one of the persons who was so bad in public speaking, and my main issue was, I was not able to speak with anyone. Then what I did, I started covering it. I Communication is not just a skill; it is a superpower that can change relationship, opportunities, and futures. So you can learn it by different methods. So communication help you to solve different problems. According to me, body language speaks, but whereas the communication, your eye contact, your smiling, your posture, your facial expressions, that will make the real difference. Non-verbal communication skills are more important than verbal communication skills, according to me. If two persons are speaking and they are talking with each other, they are having a conversation. So number one thing, if they don't know each other, so the first thing you guys will look at them, if there are two persons, like they don't know each other and now they had started communicating, so the first thing you guys will look uh, on the other person is their body language, what they are wearing, how they are speaking, what is the method they are speaking, like if you guys know about uh, relationships and friendships. So the first thing, how relationship starts, how friendship starts, it all starts through communication. Trust grows through honest communication. Many conflicts happen because of misunderstandings, bad intentions, and other things. But when communications comes, you know people feel respected, valued. So they are like, okay, that's understandable. Attention grabbing opening will help you to communicate with any person you're speaking with. Moreover, according to me, communication connects people. If you are a good communicator, you can do more social works. You can speak with different people, so that your life will be more better when your communication skills will be better, according to me. Whereas, moreover, I can say communication creates opportunities. If you are not a good communicator, you cannot do different good things, like uh, no matter if you will choose your career as a doctor, engineer, teacher, entrepreneur, athlete, artist, communication will be important. Employers usually see, when it if you will be going to get a job, the first thing you need to get it done is an interview.
So in interview, what you need to do, you need to communicate with that person, right? And the other person, the employer, what he will see in you, that are you speaking clearly, are you the person who can work with the team, what are the present ideas you're holding, and how you will be going to solve that problems, and the way you will communicate to that person, he will understand every fact that what kind of person you are. Are you a team player? Are you having good ideas, or are you the one who can solve problems? So the only way he can get these answers is because of your communication skills. If you're a good communicator, he will be like, okay, that's good. Otherwise, he got better options in the market. Also, I will end this conversation, by letting you know one thing, that communication is the main key to leadership. You know, leaders are the main persons, who inspire others, motivate their teams, share a vision, build trust. But the main thing is what they usually do. They communicate good. Every good leader is a good communicator. If you're not a good communicator, you cannot be a good leader. So if you want to be the next leader of this country, or the next leader of your family, or the next leader of anything, we can say anything. So you need to be the good, clear communicator. Thank you, everyone. Thank you so much. All right. Thank you so very much, Zishan. Yes, Jalal. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Jalal. Sorry, I joined the session very late. I'm missing some points I want to discuss with you. Do you Okay, have it's fine. Go ahead. 2 minutes for me? Uh, 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 how can we uh, increase our communication skills? Uh, can you tell about the ways, the methods? Yes, of course. The next topic that we are going to discuss is the same, right? How we'll be able to enhance our communication, how we can improve our communication first, how we can deliver actually what we want to say, right? All these kind of things we're gonna discuss uh, Okay. in the session, right? And at the end of and you'll get an insight what actually we have discussed so far. So don't be worried about it. Yes, Zainab, you will raise your hand. वो Can can मैंने ये can पूछा can था I आप take बता can I take दीजिएगा। your number? Can I take your number to? For that, don't worry. The managing the team who is taking care of this tech hub, they can definitely provide you whatever you need. Or if you want to have any other thing, you can ask me right now. Later on, Sir Abbas or anyone from the management can provide you the contact details. Don't worry. Communication का रोल हमने जैसे डिफाइन किया है और हमने दो मेजर चीज़ों को अभी तक डिस्कस किया जिसमें द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टूड कि अच्छा कम्युनिकेशन हो ठीक है कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट यू आर डिलीवरिंग टू द अदर पर्सन सिंपल इसको आसान अल्फाज में याद करने का बेहतरीन तरीका है कि आप कम्युनिकेशन इट कैन बी एनीथिंग हम आपस में बात करें वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर आप किसी से फोन पे बात करेंगे दैट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप किसी के साथ फेस टू फेस बात करेंगे दैट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप सोशल मीडिया पे कुछ टेक्स्ट फॉर्म में अपलोड करेंगे दैट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज अ सोर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है आप कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप किसी के सामने बैठे हैं बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग बट बाज़ औक़ात आपने ये फील किया होगा आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो कभी परेशान हो या कुछ भी बाज़ औक़ात ये आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि अपने अपने वालिदैन के पास जब जाते हैं पर्टिकुलरली अपनी वालदा के पास आप कभी परेशान हो
यू वोंट से इवन अ सिंगल वर्ड, लेकिन आप सिर्फ अपने वालिदैन के पास, अपने बड़ों के पास या अपने दोस्तों के पास जब जाके बैठते हैं, वो फौरन आपसे पूछते हैं अच्छा क्या हुआ, सब खैरियत है? यानी फॉर अ मोमेंट वी गॉट शॉक्ड कि अच्छा इन्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ, या इन्हें कैसे पता चला कि देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड। और ये तो हमने बात कर ली दुनियावी बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ अलमाइटी ट्रीट्स अस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दैट अलमाइटी? अल्लाह पाक से कम्युनिकेशन का सोर्स हमारे पास क्या है? कैन एनीवन टेल मी? सर नमाज और कुरान पाक। ऑलराइट, और कुछ अहदीस भी सर, क्योंकि ऑलराइट, अहदीस कुछ अल्लाह ताला से भी मरवी है ना। ऑलराइट, नमाज, कुरान पाक, अहदीस और दुआ, और ये 4 चीजें हमारे पास आ गई। दो रिकात नमाज हाजात। Okay, that falls under the category of namaz. Anyone else? Zikr. All right. The fifth सूरत thing we have that falls under Kalam Ilahi, the reciting of Quran. लाइक कोई भी सूरत हो गई, अलम नशरा हो गई, इन्ना अतैना कल कौसर हो गई, उससे पढ़ने में भी सुकून मिलता है। Exactly. वो सारा कलाम इलाही में आते हैं, हमारे पास में कुरान आते हैं पाक। हमारे पास कुरान पाक। Okay, so in simple words, there is no specific thing required to that Almighty for a communication. अल्लाह पाक की ज़ात को कोई ऐसी एक आप कह लें कि एक उसने कोई स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई ये चीज़ होगी तो यू कैन कम्युनिकेट टू मी और एल्स नो। आप जहाँ जिस तरह, जैसे, जिस हालत में, जिस जुबान में, जिस तरीके से, जिस तरह भी उस ज़ात पाक को पुकारेंगे, ही विल आंसर यू, ही आंसर्स यू ऑलवेज। जितनी भी हमने अभी चीज़ें डिस्कस की हैं, नमाज, कुरान पाक, जिक्र, दुआ, these are the source of communication, the type of communication। जैसे अभी हमने बात की ना कि कुछ वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, डिजिटल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है दुनियावी एतबार से। तो इसी तरह अलमाइटी के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है नमाज, कुरान पाक, दुआ, अस्कार, राइट। बट अगर हम जेनेरिकली बात करें, फॉर दैट अलमाइटी वी डोंट नीड एनी स्पेसिफिक मीडियम टू कम्युनिकेट। आप चल रहे हैं, you're feeling hard, you can straight away call that Almighty, my dear Almighty, I need you, ऐ मालिक मौला मुझे आपकी मदद चाहिए। On every single step of your life, whenever, wherever you call upon that Almighty, he will answer you। कहीं ना कहीं जिंदगी में आपने भी इस चीज को विटनेस किया होगा कि जब आपने बहुत ही दिल से अल्लाह पाक को पुकारा है किसी भी मामले के लिए, आपका वो मामला रिजॉल्व होता है लाजमी। देयर इज नो सेकंड डाउट इन इट कि वो मामला रिजॉल्व ना हो। बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो हम कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, और हम ये फील कर रहे होते हैं कि हमारी वो दुआ अभी तक कबूल नहीं हो रही। व्हाट इज द रीजन? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन। कैन एनीवन क्लेम में दिस थिंग कि आज से 3 साल पहले जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप वो दुआ कर रहे थे, you still pray for the same thing? Anyone who can claim this thing? I am। Okay. Anyone else? Sayyida Amna. All right, 2. All right, 2। Yes, sir, I am. Yes, sir, I am. Sayyaba 3. Sayyaba 3। Who can claim this thing for past 3 years? Whatever they were praying for, जो उन्हें चाहिए था, the thing that they want, they were praying। आज से 3 साल पहले 2023 में वो अल्लाह पाक से वो मांग रहे थे, 2024 में वो मांगते रहे, 2025 में वो मांगते रहे, 2026 में भी वो मांग रहे हैं अल्लाह पाक से। What about the rest? अब इसमें 2 कंडीशंस हमारे पास आती हैं।
Either we have got that particular thing, either we give up. How many of you can claim that जो 3 साल पहले चीजें मांग रहे थे आप, वो आपको मिल गई हैं? 1, सारी 2, नहीं मिली बट कुछ कह सकते हैं कि मिल गई हैं. 3, 4, 5, 6. Okay. 7, 8. What about the rest? Now just raise your hand. Balki, leave it. Don't raise your hand. It means it's us who gave up. अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली, the one that you were praying in 2023, आज से 3 साल पहले, so you think you just gave up. You didn't continue for that particular thing. So Almighty नो से नो सर, communication. I'm sorry. यार Yes. ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने गिव अप ना किया हो, मगर उस चीज की ख्वाहिश हमारे दिल से अल्लाह ताला ने निकाल दी हो. वो चीज हमारे नसीब में नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे दिल से उस चीज को निकाल दिया, तो हमने उसकी ख्वाहिश करना भी छोड़ दी. ये भी तो हो सकती है ना पॉसिबिलिटी. Yes, exactly. This is one of the condition as well that I was about to mention. और सर ये भी तो हो सकता है कि वो हमारी किस्मत में ना हो और इसलिए अल्लाह पाक ने उसे हमारे दिल से निकाल दिया. What do you think? What is किस्मत? Can I? आपके अकॉर्डिंग में किस्मत और लक क्या चीज होती है? लक का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि किस्मत वही होती है जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए लिखी है. Yes, Zainab, what do you think कि आप किस्मत, how you can define your किस्मत or how you can define the word किस्मत? किस्मत यही कह सकते हैं, जैसे कोई भी चीज आप उसकी ख्वाहिश कर रहे हो, वो आपको ना मिले या फिर मिल जाए, तो ये आपका नसीब है. अगर किसी चीज की आप ख्वाहिश नहीं कर रहे हो, बस देख के छोड़ दी, चलो ठीक है, मिल गई ठीक है, नहीं मिली ना भी ठीक है, तो अचानक वो आपको मिल जाए, आई थिंक दैट इज लक. या फिर अगर ये चांस ही ना हो कि आपको वो चीज नहीं मिल सकती, अचानक से आपको वो चीज किसी सोर्स से मिल जाए, दैट इज लक. फॉर मी दैट इज लक. All right. So quickly, would love to mention a few things. Jalal, could you please turn off your mic? I'll be very thankful to you. All right, thank you. So now let's say quickly conclude this thing. देखें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें हर चीज़ की क्लैरिटी दी हुई है. कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हुआ है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है. ये वर्ड्स बहुत फेमस है, आपने बड़ी जगह सुनी होगी, बड़ी जगह लिखी देखी होगी, पढ़ी होगी. इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है. आज से 4 साल पहले तक मेरा यही बिलीव था कि ठीक है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है. लेट मी स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क. मैं बस मेहनत करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ. स्टिल didn't got anything. In my last session, one of my student asked me कि अच्छा सर, आप ये बात बहुत मेंशन करते हैं बैक इन 2024 कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है. मैं तो इतने अरसे से मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ की, मुझे ये चीज़ नहीं मिली. देन व्हाट? अल्लाह पाक का फरमान कहाँ गया? एंड दिस क्वेश्चन pop up a very, very thoughtful thing in my mind. Then asked Almighty, Amalikum, I need an answer, the proper answer for that particular thing. And wallahi, I'm very grateful and thankful to that Almighty. Right on that moment, when I was scrolling, I found the answer. Like if I'll talk about myself, मैं काफ़ी अर्सा तक सिर्फ एक ही वर्ड्स को पकड़ के बैठा हुआ था कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है. बट आई गुड सरप्राइज जब अल्लाह पाक ने मुझे इंसाइट दी अगली 2 वर्ड्स की. इसी वर्ड्स के आगे जो 2 वर्सेस हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड है. नंबर 1 वर्ड्स इज इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है. राइट? हम तुम्हारी मेहनत को परखेंगे. दैट इज द सेकंड वर्ड्स. एंड द थर्ड वर्ड्स इज और फिर हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत के एवज नवाजेंगे. एंड दिस क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम द अलमाइटी गेव मी द क्लैरिटी. ओके, आज तक अगर मुझे कोई चीज नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिली?
क्योंकि मेरी मेहनत की फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से मैच हो ही नहीं रही थी। अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ, इफ़ आई एम लुकिंग अप टू हैव सम डिज़ायर्ड डेजिग्नेशन इन पाकिस्तान, और अगर मैं कोई कोई घर की डिमांड कर रहा हूँ या मैं कोई गाड़ी की डिमांड कर रहा हूँ, एनीथिंग, एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, और अगर मैं किसी पर्सन की डिमांड कर रहा हूँ कि आई वांट टू हैव दैट थिंग, या अगर मैं किसी और चीज़ की भी डिमांड कर रहा हूँ, आई नीड टू मेक श्योर फर्स्ट कि क्या मेरी मेहनत उस चीज़ के लिए कैपेबल है। इफ़ द आंसर इज यस, wallahi keep doing it. You will definitely get that particular thing on a right time that has been written by Almighty to you. But do not give up. Yes, Mehak, you want to say something? एक्चुअली समटाइम्स ये होता है कि हम एक चीज के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, बट वो हमारे लिए अगर बेहतर नहीं होती तो उसके लिए अल्टरनेटिव भी अल्लाह ताला हमारे लिए बना देते हैं। लाइक कुछ और सोर्सेज हो जाते हैं हमारे लिए उसके लिए कि हमें वो चीज डायरेक्ट नहीं मिलती, बट उसका अल्टरनेट हमें मिल जाता है। Exactly. Because अल्लाह पाक कभी भी आपकी मेहनत को, जो आपने उससे कम्युनिकेशन, द कनेक्शन दैट यू ट्राई टू हैव फ्रॉम दैट अलमाइटी, उसकी लाज अल्लाह पाक कभी नहीं तोड़ते। दैट अलमाइटी कीप दैट पर्टिकुलर थिंग टू यू। क्योंकि हमारी सोच बहुत महदूद है, उस ज़ाते पाक की अता ला महदूद है। हमारी सोच थक सकती है लेकिन उस ज़ाते पाक का अता करना नहीं, वो ज़ाते पाक कभी नहीं थक सकती। सो इस चीज़ के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू एन एडवाइस कि आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जस्ट ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर, एवरीवन क्विकली हैव अ पेन एंड अ पेपर। एक बहुत फेमस रूल आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, implement it for upcoming 21 days and see the results. This is a part of communicating to yourself. आप इस पर्टिकुलर रूल की वजह से आप पहले खुद से कम्युनिकेट करना सीखेंगे। कैन एनीवन आउट ऑफ यू क्लेम में दिस थिंग के पास्ट 1 वीक में कोई एक ऐसा दिन हो, let's forget about 1 वीक, पास्ट 3 डेज में एनीवन आउट ऑफ यू कैन क्लेम दिस थिंग कि उसने खुद को शीशे में देखा एंड बहुत प्राउड फील किया कि, और खुद को ये लफ्ज़ कहे कि यार माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत फख्र है तुम पे, अपनी ज़ात को मुखातिब करके मिरर में। एनीवन कैन क्लेम दिस थिंग इन पास्ट 3 डेज। आपने खुद को शीशे में देख के कहा कि यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एनीवन? Okay, one, we got Muqaddas, we got Hafiz Muhammad. 2, Iman. 3, Walaikum Assalam. निकोला टेस्ला ने जो कहा था कि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी की है 369, इट रियली वर्क्स, जस्ट इम्प्लीमेंट इट। और न्यूरो साइंस इसमें क्या कहती है? न्यूरो साइंस कहती है ये 369 रूल जो है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है, कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। एनीवन हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? Anyone who can? Okay, so सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, ये कैटेगरीज है क्या और ये किस तरह काम करती हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 1 इज द कॉन्शियसनेस जो अभी हम सब अपने हवास में है, जिसको हम उर्दू में अगर मैं बात करूँ, आप अपने होशो हवास में हो। आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, आपका आपकी बॉडी पे कंट्रोल है, आपका आपके वर्ड्स पे कंट्रोल है, आपके एक्शंस पे कंट्रोल है। इट ऑल फॉल्स अंडर द कॉन्शियसनेस। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है अनकॉन्शियसनेस, जिसमें आपका आपके हवास पे कंट्रोल नहीं होता, आपका आपके वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता, आपके एक्शंस पे कंट्रोल नहीं होता। और ऐसा यूजुअली कब होता है? व्हेन समवन लूज देयर टेम्पर्स, they become a victim of unconsciousness. बाज़ औक़ात फिर हम कह देते हैं कि मैं उस टाइम अपने होश में नहीं था तो मैंने गुस्से में ही कह दिया। जब हम रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात करते हैं उसमें जो हमारे पास डिवोर्स केसेस आते हैं उसमें मेजर क्लेम यही किया जाता है, मैं उस टाइम अपने होश में नहीं था, मैंने गुस्से में तलाक दे दी।
So the middle part is the subconsciousness, as Nazneen mentioned. So in simple words, जब आप आपके सोने से लेकर, पहले मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात आप इस चीज को फील करते हैं कि आप बज़ाहिर तो सो रहे हैं, बट आप बहुत क्लियरली सुन सकते हैं कि आपके आसपास लोग बातें क्या कर रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पास से कौन गुजरा है, डिस्पाइट इवन यू आर स्लीपिंग। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? Yes, sir. It happens with most of us. So आपके स्लीपिंग टाइम से लेकर till 20 minutes of your sleep, आपके first 20 minutes of your sleep are the major part जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में होते हो। और बच्चों के लिए हम ये चीज़ शेयर करते हैं कि अगर आपने बच्चों के अंदर कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है, सो दे आर 3 पॉइंट्स जो जब भी आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, उन 3 मोमेंट्स में अगर आप कम्युनिकेट करेंगे अपने बच्चे को, तो दे विल अडॉप्ट दिस थिंग। नंबर 1 इज व्हेन दे वेंट टू स्लीप, जब वो सो जाएं, राइट आफ्टर दे स्लीप आप उनके पास जाएं, आप उनके कान में, आप उनको जैसी शख्सियत बनाना चाहते हैं उनको वो अप्रेजल पॉजिटिव वर्ड्स कहें, बिकॉज फिजिकली तो वो सो रहे हैं बट देयर माइंड इज एक्टिव, देयर माइंड इज लिसनिंग। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, ही इज इट्स रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द लॉन्ग टर्म मेमोरीज। उस ड्यूरेशन में जो भी चीजें आप सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर हम सोने से बिल्कुल पहले हम रील्स देख के सोएं, बाज़ औक़ात हमें ख्वाब में भी वैसी चीजें आ रही होती हैं, कोई सॉन्ग सुन के सोएं, या वट एवर यू डू राइट बिफोर योर स्लीप, मोस्टली उससे रिलेटेबल कुछ ना कुछ आपके ख्वाब में लाजमी आता है। सो अपने स्लीपिंग टाइम से पहले का टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपने इम्प्रूव करना है, वो आपने उसमें सेल्फ कैथारसिस करनी है, सेल्फ कम्युनिकेशन करना है। द रूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, द रूल इज कॉल्ड 369 रूल। अब इस रूल को आपने अप्लाई कैसे करना है? 369, आपकी जो भी डिजायर है, जो आप चाहते हैं, वो आपने पहले खुद से कम्युनिकेट करनी है। सबसे पहली दफा 3 दफा आपने खुद से कम्युनिकेट करनी है सुबह उठते ही। डू नॉट पिक द फोन। आप इसको पेपर पे नोट डाउन करके कहीं अपने पास रख लें, बट मेक श्योर कि सुबह उठते सबसे पहला काम आपने वो जो भी आपकी डिजायर है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको 3 दफा रिमाइंडर देना है खुद को। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ, ओके, आई वॉन्ट टू अचीव 1 मिलियन, राइट? सो अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठूंगा, मैं उठते ही सबसे पहले अपने आप को मुखातिब करूंगा, नवीद आपने 1 मिलियन अचीव कर लिया है, नवीद आपने 1 मिलियन अचीव कर लिया, नवीद आपने 1 मिलियन अचीव कर लिया। दैट्स इट। दोपहर में, इवनिंग टाइम में, अराउंड असर के टाइम, लेट्स काउंट इट इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, असर के टाइम मुझे रिमाइंडर आया, राइट? मैंने खुद को रिमाइंड करवाना है 6 टाइम्स, नवीद आपने 1 मिलियन अचीव कर लिया, 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 एंड सो ऑन टू द 6। और मेक श्योर सबसे ज्यादा दफा जब आपने खुद को मुखातिब करना है वो राइट बिफोर स्लीप है, बिकॉज वो एक हाई टाइम ऑफ योर सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चाहे वो स्टोर कर सकते हैं। और उस टाइम की स्टोर की हुई चीज आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सो बच्चों की हम बात कर रहे थे, तो बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए ये स्लीपिंग टाइम, और जब वो कोई गेम खेल रहे हो, बिकॉज जब बच्चा किसी एक चीज, एडल्ट और बच्चे में यही फर्क होता है कि बच्चे का अगर किसी एक चीज पे फोकस है, बहुत ज्यादा फोकस है, वो सराउंडिंग चीजों को भूल जाएगा। और इसकी हम एग्जांपल लेते हैं सबसे ज्यादा गेम्स में, जब बच्चे गेम खेल रहे होते हैं उनका गेम के अलावा कहीं और मेजर फोकस नहीं होता। तो उस टाइम में जब आप अपने बच्चे को अपने पास बिठा के उसको जो भी कम्युनिकेट करेंगे, उसको जिस तरह की पर्सनैलिटी बनाना चाहेंगे, उसको जो सिखाएंगे, दे विल ऑब्जर्व, और ऑटोमेटिकली उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें फोर्स करेगा कि ओके यू हैव टू डू इट। आपका माइंड आपको रिमाइंडर्स देता रहेगा। लेटर लाइफ में, एडल्टहुड में जाके भी आपको बहुत सी बातें वो याद रहेंगी। ऑल ऑफ अस, हमारी कोई ना कोई बचपन की मेमोरी है, हमें याद होगा कि हमारे बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा। Yes, Zainab, you have a question. Then the game also includes the screen time. Yes, it does. अब बच्चों की मैंने particularly यहाँ पे बात क्यों किया है? We are talking about the children under the age of 10.
जब उनकी मेजरली ग्रोइंग एज चल रही होती है, 2 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक, बल्कि अब आजकल के दौर में तो ये टाइम स्पैन मजीद कम हो गया, वी कैन काउंट इट इन बिटवीन 2 ईयर्स to 6 ईयर्स। जब आप अपने बच्चे को जिस तरह का बनाना चाहते हैं, आप इन कुछ चंद रूल्स को फॉलो करके अपने बच्चे को उस पर्सनैलिटी के अंदर मोल्ड कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग देम। ये हमें चीज़ मिलती कहाँ से? ये एग्जाम्पल हमें मिलती है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की लाइफ से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, क्यों कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है? ये नहीं कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, नो, अमली नमूना है। बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने जो भी काम किया उसको पहले खुद परफॉर्म किया है। एक्ट के अकॉर्डिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से लोग मुतासिर होते थे। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को क्या टाइटल्स मिले हुए थे? सादिक व अमीन। वाई? बिकॉज उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक जो मॉड्यूल अपना सेट किया हुआ था लोगों के साथ, अपनी दयानतदारी, ईमानतदारी के साथ, तो लोगों पे ऑलरेडी एक उनका इमेज था कि कुफार भी, डिस्पाइट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नबूवत आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं भी किया, दे स्टिल जो अपनी इमानतें थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के पास रखवाते थे। वाई? बिकॉज उन्हें पता था कि पूरे उस टाइम के मुआशरे में इनसे बढ़कर सादिक और अमीन कोई भी नहीं है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बता दिया कि कोई भी चीज जब तक आप खुद अडॉप्ट नहीं करोगे, यू कैन नॉट कम्युनिकेट इट टू दी अदर्स। हजरत अली का भी कौल है, अगर आप चाहते हो कि आपका कहा हुआ कौल किसी पर असर करे, स्पेशली ये टीचर्स के लिए है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपकी बात पर अमल करें, मेक श्योर कि पहले उस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, आप खुद उस चीज़ पे अमल कर रहे हो। अगर पेरेंट्स बच्चों को नमाज की तलकीन करते हैं बार बार कि ओके बच्चों नमाज पढ़ो, पहले उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए क्या वो नमाज पढ़ें अपने बच्चों के सामने। एंड वल्लाही ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रैक्टिकली चीज़ देखी है कि आप, बास ऐसे पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका मामूल ये है कि जब नमाज का टाइम होना, दे जस्ट प्रिपेयर देयर सेल्फ एंड दे स्टार्ट प्रेइंग। और जब उनके बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, दे ऑटोमेटिकली केम अलोंग टू द देयर पेरेंट्स कि अच्छा हमें भी नमाज पढ़ाएं। दे स्टार्ट आस्किंग पेरेंट्स कि ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताएं। That is the first pointer of your success, that you have communicated to your children कि okay, this is the major pathway of your success in your life, कि आपने अपने Almighty के साथ connected रहना through this pattern of your communication. So to cut it short, अगर आप, I'm gonna repeat this point, अपनी जिंदगी में खुद से कम्युनिकेट करें, you'll achieve this thing। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप उसको खुद से कम्युनिकेट करें, पहले छोड़ दें बाकी सबको, कम्युनिकेट इट टू योरसेल्फ। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है एंड यू आर विलिंग टू हैव समथिंग, कम्युनिकेट इट टू अलमाइटी। दुनिया आपको रुसवा कर सकती है लेकिन वो जाते पाक आपकी लाज रखती है। सो मेक श्योर जिंदगी में कभी भी किसी भी मुकाम पे लगे कि अब हम हारने लगे हैं, बिफोर गिविंग अप, वन लास्ट टाइम गो टू दैट अलमाइटी। और मेक श्योर कि जब आप उस जाते पाक से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें कोई इफ एंड बट्स ना हो, बिकॉज लिमिट्स आर ओनली दोज थिंग्स जो आपका दिमाग क्रिएट करता है आपके लिए, और एल्स लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट्स आर ओनली दोज जो आपका दिमाग आपके लिए क्रिएट कर देता है इन सोर्स ऑफ हर्डल्स, इन सोर्ट ऑफ दिस थिंग कि यार ये शायद नहीं हो सकता, लेट्स डू समथिंग एल्स। नो, दुनिया में हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। केएफसी कैसे, डिस्पाइट हम रिलीजियस फैक्टर को एक साइड पे रखें, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ केएफसी? ही फेल्ड 99 times, then what he has done, he didn't give up, he just tried one last time before giving up and see where he is right now. So इस तरह की हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप अपनी जिंदगी में तब हारते हैं जब आप गिव अप कर जाते हैं। So anyone have any question right now? All right, so that is all from my part for today. Thank you so very much, Saraves, for inviting me and all the team members. It's a pleasure to talk to you guys. और kindly
the first 5 pointers जो हमने डिस्कस किए थे, जो आप लोगों में से ही इंडिविजुअल्स ने कम्युनिकेशन के रिगार्ड्स बताए थे, एनीवन हु कैन क्लेम दिस थिंग कि वो उन पॉइंटर्स को रिपीट कर सकते हैं? ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर किसी को याद नहीं है, लेट मी रिपीट इट फॉर यू गाइस, द पॉइंट्स दैट वी गॉट. सो सबसे पहले हमें मुकद्दस ने बताया था कम्युनिकेशन इज द नोइंग ईच अदर. Then Zainab shared the thought, the sharing of ideas is called communication. Maham ने हमें बताया था कि the group talk is called communication. Then Mehak added on exchange of words. And last but not the least, Nazneen mentioned that exchange of anything is called communication. So everyone have stated right. Communication की कोई specific definition exist नहीं करती. Why? Because it can be in any form, it can be in any medium. So thank you so very much, and Allah Pak sabko salamat rakhe. Stay blessed. Thank you.